اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں قواعد سے، گرامر سے. اس میں یاد رکھیے آپ، ہم ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں. ٹی پی آئی کا مطلب ہے کہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ بولیے بھی اور بتائیے بھی اور دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. یاد رکھیے ہم 3 حروف والے فعل کے 4 اہم ابواب سیکھ چکے ہیں: فتح، نصر، ضرب، سمع. اس کے بعد سے ہم نے یہ کیا کہ اس کے کچھ خاص حالتوں والے افعال سیکھے. یعنی ان 3 لیٹرز میں اگر شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں ویک لیٹر آ جائے، جیسے وعد، وجد، وعد یعید، یہ سیکھا ہم نے. بیچ میں ویک لیٹر آئے جیسے قال یقول، جاء یجیء. اسی طرح آخری میں ویک لیٹر آئے جیسے دعا یدعو، یہ سیکھے. اسی طرح اگر ان تینوں ویک لیٹرز میں، تینوں لیٹرز میں سے فتح، نصر، ضرب، اس قسم کے افعال میں سے اگر کوئی ایک حمزہ آ جائے جیسے امر یامر، یہ بھی سیکھ لیا ہم نے. آج ہم سیکھیں گے وہ کیس یا ایسے افعال جن کے آخری 2 حروف، یعنی مادے میں 3 حروف ہوتے ہیں، آخری 2 حروف یکساں ہوں، جیسے ضل، ضلل، ضل، ظن. یا آج ہی کی صورت میں ہم نے دیکھا دعا، حض یحض، دعا یدعو، ضل یضل، ظن یظن. تو اس قسم کے افعال سیکھیں گے. ہم نے یہ پورے چیزیں یاد رکھنے کے لیے آپ کو ایک مختصر دلچسپ کچھ جملوں کا اسٹرکچر بھی یاد دلایا تھا. جیسے قرآن کھولو گے فتح، تو آپ لوگ جواب دیجئے. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر، ورنہ مار پڑے گی، ضرب، اس لیے سن لو، سمع. پھر سے قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. یہ تھے بیسک 4 اہم ابواب. اسپیشل کیسز جو ہیں اس کو ہم ہم اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اسی نے کہا ہے قرآن میں، قال، اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں، امرا. پھر سے یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اسی نے کہا ہے، قال، اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں. ایک بار اور، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی نے کہا ہے، اس لیے دعا کرو کہ ہم اس کے حکم پر چلیں، ورنہ بھٹک جائیں گے، ضل. تو آخری ہے ورنہ ہم بھٹک جائیں گے، یعنی اس کے راستے کو چھوڑ کر بھٹک جائیں گے، ضل. تو اس ضل کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ضل کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا. یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں سیکھا، یعنی وہی مادہ ہے جیسے ضالین، یعنی گمراہ ہونے والے. تو ضل مطلب وہ گمراہ ہوا. قرآن کریم میں تقریباً 100 سے زیادہ بار یہ آیا ہے. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میرے بعد ریپیٹ کیجئے. ضل وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللتو میں گمراہ ہوا، ضللنا ہم گمراہ ہوئے. اس قسم کی پریکٹس کرتے ہوئے ہم اپنا ایمان و یقین نہیں بتا رہے ہیں بلکہ یہ پریکٹس کر رہے ہیں. یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، یضلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تضل آپ گمراہ ہوتے ہیں، تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، اضل میں گمراہ ہوتا ہوں، نضل ہم گمراہ ہوتے ہیں، ضل گمراہ ہو، ضلوا گمراہ ہو، لا تضل مت گمراہ ہو، لا تضلوا مت گمراہ ہو، ضال گمراہ ہونے والا، ڈیش اس لیے کسی پر اثر نہیں پڑا، ضلالہ گمراہی. میرے بات ترجمہ کیجئے. ضل وہ گمراہ ہوا، ضلوا ضللتا ضللتم ضللتو ضللنا یضل یضلون تضل تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، اضل میں گمراہ ہوتا ہوں، نضل ضل گمراہ ہو،
दिल्लू, गुमराह हो, ला तदिल, मत गुमराह हो, ला तदिल्लू, मत गुमराह हो, दाल, गुमराह होने वाला, डैश, दलाला। गुमराह। अब हुआ दल्ला, हिया दल्लत, हिया दल्लत, वो गुमराह हुई। हुआ यदिल्लु, हिया तदिल्लु, वो गुमराह होती है। अब मेरे बात अरबी में दोहराइए सोचते हुए कि आप क्या कह रहे हैं। दल्ला दल्लू, दल्ला दल्लू, दललता दललतुम, दललता दललतुम, दललतु दललना, दललतु दललना, यदिल्लु यदिल्लूना, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, अदिल्लु नदिल्लु, अदिल्लु नदिल्लु, दिल्ला दिल्लू, दिल्ला दिल्लू, ला तदिल ला तदिल्लु, ला तदिल्ला ला तदिल्लु, दाल दाल डैश डैश दलाला, दलाला, हुआ दल्ला हिया दल्लत, हुआ यदिल्लु हिया तदिल्लु। फिर एक बार मेरे बात, दल्ला दल्लू, दल्ला दल्लू, दललता दललतुम, दललता दललतुम, दललतु दललना, दललतु दललना, यदिल्लु यदिल्लूना, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, अदिल्लु नदिल्लु, अदिल्लु नदिल्लु, दिल्ला दिल्लू, दिल्ला दिल्लू, ला तदिल ला तदिल्लु, ला तदिल ला तदिल्लु, दाल दाल डैश डैश दलाला, दलाला, हुआ दल्ला हिया दल्लत, हुआ यदिल्लु हिया तदिल्लु। मेरे साथ स्लोली अरबी में, दल्ला दल्लू, दललता दललतुम, दललतु दललना, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, अदिल्लु नदिल्लु, दिल्ला दिल्लू, ला तदिल ला तदिल्लू, दाल डैश दलाला, हुआ दल्ला हिया दल्लत, हुआ यदिल्लु हिया तदिल्लु। माशाल्लाह 100 बार आने वाले। और देखिए इसमें जो नजर आ रहा है आपको कि बाज वक्त ये दोनों आखिरी के हरूफ जुड़ जाते हैं जैसे दल्ला दल्लू में, और बाज वक्त खुल जाते हैं जैसे दललता दललतुम। बोलने की आसानी के लिए आप खुद देख सकते हैं, दललता कहना मुश्किल है, दललता कहना आसान है। दूसरा लफ्ज है वन्ना। इसके लिए पहले हम एक आयत का टुकड़ा लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न बअद वन्नि इस्म, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। तो वन का मतलब है गुमान करना और इस्म है गुनाह, यानी बार बार या हर बार गुमान मत करते रहो, गलत जो है गुमान मत करो, क्योंकि बाज गुमान वो गुनाह होते हैं। वन के दो माने हैं, याद रखिए वन के दो माने हैं, एक है गुमान करना और दूसरे है यकीन करना। एक है गुमान करना और यकीन करना, कॉन्टेक्स्ट बताता है कि यहां पर क्या मुराद है। तो वन्ना का मतलब है उसने गुमान किया। ये लफ्ज, ये तर्जुमा लेते हैं हम और प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग तर्जुमा कीजिए, वन्ना उसने गुमान किया, वन्नु उन सब ने गुमान किया, वनंता आपने गुमान किया, वनंतुम आप सब ने गुमान किया, वनंतु मैंने गुमान किया, वनन्ना हमने गुमान किया, यज़ुन्नु वो गुमान करता है। देखिए दल्ला यदिल्लु था, ये वन्ना यज़िन्नु नहीं है, वन्ना यज़ुन्नु है। गोया दल्ला यदिल्लु दरबा यदरिबु के वजन पर था, ये वन्ना यज़ुन्नु नसरा यंसुरु के स्टाइल पर है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ते जाएंगे कुरान, इंशाल्लाह इससे फैमिलियर होंगे। बहुत घबराइए मत, जो मालूम है उसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। तो तर्जुमा कीजिए, यज़ुन्नु वो गुमान करता है, यज़ुन्नुना वो सब गुमान करते हैं, तज़ुन्नु आप गुमान करते हैं, तज़ुन्नुना आप सब गुमान करते हैं, अज़ुन्नु मैं गुमान करता हूँ, नज़ुन्नु हम गुमान करते हैं, ज़ुन्ना गुमान कर, ज़ुन्नु गुमान करो, ला तज़ुन्न मत गुमान कर, ला तज़ुन्नु मत गुमान करो, वन गुमान करने वाला, मज़नून जिस पर गुमान किया गया, वन गुमान करना या यकीन करना। हुआ ज़न्न हिया ज़न्नत उसने गुमान किया, हुआ यज़ुन्नु हिया तज़ुन्नु वो गुमान करती है। अब मेरे बात अरबी में दोहराइए सोचते हुए कि आप क्या कह रहे हैं। वन्ना वन्नु, ज़न्ना ज़न्नु,
वनंत वनंतुम वनन्त वनन्तुम वनंतु वनन्न वनन्तु वनन्ना यवुन्नु यवुन्नून यवुन्नु यवुन्नून तवुन्नु तवुन्नून तवुन्नु तवुन्नून अवुन्नु नवुन्नु अवुन्नु नवुन्नु वुन्न वुन्नु ज़ुन्न ज़ुन्नु ला तवुन्न ला तवुन्नु ला तज़ुन्न ला तज़ुन्नु वान ज़ान मज़नून मज़मून वन ज़न हुआ वन्न हिया वन्नत हुआ यظن हिया तظن। माशाअल्लाह। तो हमने जो अफ़आल, वो अफ़आल को भी सीखा जिनके आखिरी दो हुरूफ मादे के सेम हो, जैसे दल्ला और वन्ना। याद रखिए जो भी अफ़आल जो स्पेशल केसेस वाले हैं वो किसी न किसी चार पैटर्न में से एक पर आते हैं, जो फतहा नसरा दरबा समिआ उस पर आते हैं। उसके बाद जो स्पेशल केसेस हैं जैसे वआदा, काला, दआ, अमरा, दल्ला, ये सारे वो या तो फतहा के पैटर्न पर होंगे या नसरा के या दरबा के या समिआ के। ये चार में से एक। दो और हैं लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया। इस सबक के साथ हमारे सुलासी मुजर्रद, सुलासी यानी तीन हुरूफ वाले, मुजर्रद यानी सिर्फ, यहाँ मुख्तसर उसका सादा मतलब ये लीजिए, सुलासी मुजर्रद, अफ़आल सुलासी मुजर्रद यानी तीन हुरूफ वाले, सिर्फ तीन हुरूफ वाले अफ़आल, उसका चैप्टर हमने सीख लिया। इसमें क्या क्या सीखा हमने? फतहा, नसरा, दरबा, समिआ, ये चार बुनियादी पैटर्न सीखे और उसके स्पेशल क्या सीखे? वादा, काला, दआ, अमरा और दल्ला। तो इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इन सारे पैटर्न्स को याद रखने के लिए, इसलिए कि इसके बाद हम सुलासी मजीद फी सीखेंगे, उसकी तशरीह इंशाअल्लाह वो लजीज रहेगी, लेकिन अगले सबक में। फिल वक्त इनको हम 1-2-3 बार दोहरा लेते हैं। कैसे याद रखेंगे हम? कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिआ ये अल्लाह का वादा है, वादा उसी ने कहा है, इसलिए दुआ करो, दआ कि हम उसके हुक्म पर चलें वरना भटक जाएंगे, दल्ला। याद हो गया ना? ये चार बेसिक और चार और ये 5 स्पेशल, 4 और 5 9 गोया हमने स्टाइल सीखे। तो फतहा, नसरा, दरबा, समिआ ये बुनियादी पैटर्न हुए और उसके स्पेशल केसेस 5 हैं। कौन से 5? वादा, काला, दआ। इन तीनों के शुरू में वाव आए, वीक लेटर आए, या बीच में आए वीक लेटर जैसे काला में है, या आखिरी में आए जैसे दआ में है, और या हमजा आए जैसे अमरा में है, या रिपीट हो मादे के हुरूफ जैसे दल्ला में या वन्ना में है। याद रखिए काला में बीच में अलिफ है, मादे में या तो वाव होता है या होता है, लेकिन हम यहां पर सादी बात करना चाहते हैं। वाव या अलिफ तीनों में से कोई भी आपको फेले माजी में नजर आए तो ये वीक लेटर है, और उसका नतीजा क्या होता है? वीक लेटर्स का जहां तक ताल्लुक है ये डर कर भाग जाते हैं। आपने जैसे सीखा वादा, याइदु, काला, यकूलु, कुल, या बदलते रहते हैं वगैरह। अब देखिए एक लर्निंग टिप, मोटिवेशनल टिप। नमाज में हम 3 ऐसे काम करते हैं जो बहुत ही काबिल नफरत काम है। काबिल नफरत इस मानों में कि कोई हमारे साथ करे तो हमको चिढ़ाए, हमको नफरत हो। पहली चीज जो हमने देखी, हम तेज पढ़ते हैं। दूसरी ये कि दिमाग कहीं और होता है। आज हम ये देखते हैं इसकी जरा तशरीह के हम बगैर एहसास के बात करते हैं। मसलन आपका नौकर, असिस्टेंट, सेक्रेटरी आपसे इस तरह कहे, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत खूब नवाजे, जन्नत में आपके दर्जात बढ़ा दे, मेरा एक काम कर दीजिए। आप कहेंगे यार तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये क्या मशीन के अंदाज से, रॉबर्ट के अंदाज से पढ़ रहा है। अगर आपको मालूम है कि उसका दिमाग बिल्कुल सही है और फिर भी ऐसी हरकत कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि आप उसकी तारीफ पर खुश होंगे या उसके सवाल पर इजीली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो याद रखिए अल्लाह ताला के सामने जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा दिल जज्बात से भरपूर होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज आएगी, एकदम पहले दिन ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करें, हम हर आयत पर रुकें, एहसासात को बेदार करने की कोशिश करें और समझ कर पढ़ें, फोकस से पढ़ें। इंशाअल्लाह तो ऐसी नमाज
انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کا خوب اجر دے گا.